today we'll continue from network only, like after the topology what we have. Network devices. Yes. All of you can see my screen? Yes, sir. All of you can hear me, Shushubro? Yes, sir. Then Orgo? Orgo? I used to like you spoke only. Pritam? হ্যাঁ স্যার দেখতে পাচ্ছি Ankush? হ্যাঁ স্যার পাচ্ছি। Who is with A? A mane who is A? The profile photo A. এটা কে? আমি তো অভিশ্বেতা। ও আচ্ছা অভিশ্বেতা। তাহলে অর্ঘ 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 আর ইউ देयर? বাট এটা কি আবার? আনমিউট ওয়ান্স। তোর মাইক্রোফোনের প্রবলেম আছে নাকি? কি লিখলি আবার? হ্যাঁ। Now see, this time few things you have to take care like anything, like your devices. Suppose your laptop, if you are working from laptop, then laptop's microphone, webcam, all are working fine. Zoom is updated, it's working fine, and on top of that you have good support of network. These few things, this is the demand of the present scenario, present situation, right? So whenever a soldier goes to the war field, he takes care of the things which he needs. Now যখন war field থেকে আবার he comes back to the base camp, he requires something else. So time to time your essential needs may differ, so we have to take care of those essential commodities that we need according to the need of the situation, right? So that is basically very, very important. So so first of all, see network devices. Now very important, network devices. See, as I already told you earlier also, that depending upon the need, you need to have your the system ready. Now whenever we want to establish a network, not only that you have good network connectivity, but the thing is, apart from network connectivity, you should have be ready with the network devices. Without the network devices, you cannot establish a good network. Mane, there are some devices which are essential to establish a network. Now let me give an example. Suppose you want to establish a LAN. Now can you imagine without a hub or switch you can establish a LAN? Not possible. So over here, hub or LAN, hub or switch will play a very, very important role. So now, not only hub or switch, there are so many
devices which are required depending upon your requirement, depending upon the type of network you are establishing. Now there are some devices which will be required in this scenario. The other devices will not be required. So in that case, we need to understand, or we need to know the role of each and every device. We need to know the role of each and every device. So now this is according to the knowledge point of view. Now coming to the exam point of view. एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? सपोज लेट्स टेक अ थिंग, यहाँ पे केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. सपोज एक छोटा सा केस स्टडीज दे दिया. सपोज मिस्टर एक्स वर्किंग इन XYZ कंपनी एज नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर. While connecting two devices at a distance of 200 meters apart, what he found, the bandwidth is reduced while reaching to the destination. The source, at the source, the bandwidth is very good or pretty good, but while it is reaching to the destination, the bandwidth is getting reduced. And if the bandwidth is reduced, automatically the speed of the transmission will be reduced. Now in this scenario, which device he should use to overcome this problem? Scenario बोल दिया तुमको. Now the question is, नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 डिवाइस का नाम दिया हुआ है. Now यहाँ पे you have to identify इस सिचुएशन में कौन सा डिवाइस को यूज करना है. ऐसा टाइप के क्वेश्चन आते हैं. और डायरेक्टली क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत कम आता है. What is the utility of using a router? What is the utility of using a switch? ये ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, बट थोड़ा कम आते हैं. डायरेक्ट क्वेश्चन के बदले में केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा आता है. सो नेटवर्क में, नेटवर्क ये पोर्शन में केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आता है. राइट. सो कमिंग टू द network device, very important network device is the modem. First of all, let me tell you how the name came, that modem. Basically the name came from modulation, demodulation. Now from here we can easily see that MO from here and DEM from here. So it is forming the name modem. Modulation and demodulation. Basically what happens, if modulation is giving, demodulation is taking. Both the reverse process. Composing, decomposing. Composing means accumulating. Decomposing means dividing. So both are opposite. Charging, discharging. Whenever we charge our a device like mobile phone, after you power off and you are using mobile phone, basically you are discharging. Same kind of thing happens in modem. It takes care two different, two opposite processes. It takes care two opposite processes. So that's why it is called modulation and demodulation. So hence the name came modem. It is a computer peripheral that allows you to connect
and communicate with other computers via telephone line. This is basically the definition you talk about. But what happens over here? Now this is basically, you can see the diagram. Over here we have modem, right? This is the modem. Now this is our network. This is our network. Now whenever we talk about our network, laptop, computers, these are all what? These are in the signal which is digital. Whenever we talk about computers, laptops, mobile phones, whatever, these are all in digital. Digital means digital signal. But whenever we talk about connecting to internet, we are talking about analog. Now whenever we will connect to internet, basically we connect to telephone lines everywhere, whatever may be your providers, ISP, internet service provider. Maybe I am using suppose Jio Fiber, I am using Airtel, I am using Vodafone, I am using Cynet. So many things, XYZ ISPs are there. Now if you carefully look, you will be able to understand that each and every ISP is basically connected to one telephone line, right? You can take BSNL connection. So from here you can easily understand. Jio Fiber, this is also, it is using Jio's network. You are connected to Airtel, it is using Airtel network. So these are all what? Telephone network. So whenever we talk about telephone connection, and over there the signal will be in analog. And whenever we talk about our computer systems, laptops, computers, mobile phone, whatever, tablets, these all are into digital signal. So here there is a compatibility. Here there is a compatibility. आप लोग का अगर याद है तो कंपाइलर का रोल क्या था? कंपाइलर का रोल था हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना. इट वाज द जॉब ऑफ अ कंपाइलर, इफ यू रिमेंबर. क्योंकि बिना कंपाइलर में you cannot execute programs. Like compiler will convert your code from high level to low level or high level to machine language, so that the computer can understand your instructions that you have written. Now same thing is happening over here. Suppose you want to send some information, so that means तुम्हारा जो digital data है that will be sent to telephone lines, and ये डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल मतलब टेलीफोन लाइन में ये डिजिटल डेटा कैनॉट ट्रांसमिट. दैट मींस योर सेंडिंग प्रोसेस विल नॉट बी सक्सेसफुल. ऑन द अदर हैंड, व्हेनेवर यू विल बी रिसीविंग इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है एनालॉग सिग्नल से डिजिटल में तुमको भेजना है डेटा, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल कैनॉट रिकॉग्नाइज. So in between there must be some device which will convert analog signal to digital signal while you will be receiving. Analog signal से digital signal में convert कर देगा, और जब आप लोग send करोगे then digital signal को analog signal में convert करेगा. ऐसा एक device is required, and this is basically the modem. So whenever you want to connect to internet without modem, not at all possible. That is the job of the modem. तो इसीलिए दो अलग अलग मतलब ऑपोजिट प्रोसेस है. एक है एनालॉग टू डिजिटल और दूसरा है डिजिटल टू एनालॉग. इसीलिए इसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, लाइक दिस. एक प्रोसेस को मॉड्यूलेशन बोलते हैं, दूसरा प्रोसेस को, रिवर्स प्रोसेस को डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं. कंपोजिंग, डिकम्पोजिंग. So that is the job of the modem, right?
If anyone of you have any question, you can ask me. Otherwise, I'll go to the next. Now, come to the hub. Hub is what? Hub is basically something like junction. স্যার হ্যাঁ বল। মোডেমের সাথে যে রাউটারের কানেকশন ওই জায়গাটা বুঝলাম না। রাউটার আসবো, রাউটার যখন বলবো তখন বলবো। মোডেম তো শুধু মানে অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল কনভার্ট করে আর ডিজিটাল টু অ্যানালগ। মডেমের কাজ। রাউটারটা যখন বলবো তখন তোর কোশ্চেনের আনসারটা তুই পেয়ে যাবি। ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার। রাউটার আসবো পরে। নাও hub is a networking device having multiple ports that are used for connecting multiple computers or segments of a LAN together. हब मतलब एक जंक्शन पॉइंट, जहां पे सपोज ऐसा, जहां पे जगह जगह से चीज आके यहाँ पे जोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड हब। बिजनेस हब, सारा बिजनेस पॉइंट एक जगह पे, राइट। एजुकेशनल हब, जहाँ पे बहुत सारा कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूशंस है, सो फ्रॉम आउटसाइड so many people come to that place and come for taking educations. Medical hub, बहुत सारा हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग होम्स है, medical facilities are there, so from so many places people come there to get the medications, so that is called medical hubs. So over here, hub is basically, it's a networking device having multiple port. Port is basically, अगर पोर्ट को मतलब एकदम सिंपल अपना हिसाब से समझने की कोशिश करो, पोर्ट इज समथिंग लाइक दैट होल, जहां पे तुम कुछ डिवाइस को इंसर्ट करते हो। जैसे हम लोग का मोबाइल में पोर्ट होता है, चार्जिंग का पोर्ट, फिर कंप्यूटर में, लैपटॉप में यूएसबी पोर्ट होता है। सिमिलरली लैपटॉप में नेटवर्क का भी पोर्ट होता है। पोर्ट इज बेसिकली माने डाउनलोड अपलोड काइंड ऑफ पॉइंट, जैसे एयरपोर्ट, सी पोर्ट, बस पोर्ट नॉर्मली नहीं बोला जाता है, पोर्ट का कॉन्सेप्ट वहां से आया। एयरपोर्ट में क्या होता है, फ्लाइट आके उतरते हैं तो वहां से पैसेंजर उतर गया और पैसेंजर बोर्ड किया, तो एक पॉइंट जहां पे तुम्हारा डाउनलोड हो रहा है, अपलोड हो रहा है, सो तुम्हारा एक कनेक्शन इधर से आ रहा है, आके यहाँ पे डेटा को छोड़ रहा है और यहाँ से डेटा अंदर में चला गया, और जो डेटा तुम लोगे यहाँ से तुम्हारा यहाँ पे आएगा, अपलोड हो गया और तुम ये डेटा को लेके चले गए। सो दैट इज व्हाई इसको बोला जाता है पोर्ट। कनेक्टिंग मल्टीपल पोर्ट्स मतलब ऐसा बहुत सारा पोर्ट होता है और हर एक पोर्ट से तुम एक एक डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ one port, I mean device called hub. ये देखो, these are the ports, these all are network port. नेटवर्क का जो केबल के सामने, आई होप यू हैव सीन, ऐसा एक टूल क्लिप रहता है, जैसे टेलीफोन में रहता है क्लिप, सेम काइंड ऑफ क्लिप यहाँ पे भी रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होता है। टेलीफोन का क्लिप से ये नहीं चलेगा, नेटवर्क का क्लिप थोड़ा बड़ा होता है। ये क्लिप का नाम होता है RJ45, इसका नाम होता है RJ45, मार्केट नेम। तुम कोई भी दुकान में जाके पूछोगे कि गिव मी RJ45, ऐसे तुम्हें टुकड़ा टुकड़ा क्लिप दे देगा। वो नेटवर्क केबल के सामने लगाना पड़ता है, लगाने के लिए थोड़ा प्रोसेस है, इसके लिए एक टूल चाहिए होता है, ऐसे सीजर्स जैसा एक टूल होता है, वो टूल यूज करके इसको लॉक किया जाता है एंड वो क्लिप को यहाँ पे घुसाना पड़ता है। दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट। नाउ ये D-Link, this is the manufacturer of the network device. ऐसे D-Link है, बहुत सारा कंपनी है, Realtek है, D-Link है, D-Link बहुत पॉपुलर है, D-Link है, Realtek है, और आजकल बहुत सारा निकल गया क्या, TP-Link, ऐसा बहुत कुछ है, लेकिन D-Link बहुत पॉपुलर है, बहुत पुराना है D-Link। Like I am seeing D-Link for last you can say 20 years. D-Link इतना पूरा, बाद में देखा Realtek टेक मतलब थोड़ा आया मार्केट में, लेकिन D-Link इज यू कैन से नंबर 1 इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस।
तो दिस इज बेसिकली द जॉब ऑफ द नेट हब। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से एक कनेक्शन निकल गया, यहाँ से एक कनेक्शन निकल गया, यहाँ से, तो इट इज लाइक दिस। ऐसे करके इट कैन कनेक्ट। नाउ क्या होता है, मार्केट में ऐसे मिलता है, यहाँ पे कितना 8 पोर्ट हब है शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पोर्ट हब, 16 पोर्ट हब, 32 पोर्ट हब, 64 पोर्ट हब, ऐसे करके पोर्ट के हिसाब से तुम्हें अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट तुमको खरीदना पड़ता है। तो जितना बड़ा होगा उतना दाम होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड यू विल परचेस। ठीक है, दिस इज हब। अब आ जाते हैं स्विच। अगर हम स्विच का जो इमेज हम दिखाएंगे, हब एंड स्विच में आपको देख के कुछ फर्क नजर में नहीं आएगा, लगेगा कि अरे दोनों तो सेम ही है। अगर तुम देखोगे दोनों का इमेज देखो, दोनों सेम लग रहा है देखने में, ठीक है। लेकिन ये 24 हब है, 24 पोर्ट स्विच, देखने में एकदम सेम, काम भी वही करता है, लेकिन स्विच को बोला जाते हैं स्मार्ट हब। स्विच इज द स्मार्ट हब और इंटेलिजेंट हब। स्विच को एक नाम से बुलाया जाता है, स्विच इज द इंटेलिजेंट हब। तो हम तो जनरली क्या करेंगे, जो इंटेलिजेंट है उसी को यूज करेंगे ना। इसीलिए आज के जमाने में हब ऑब्सोलेट हो गया, हब कोई यूज नहीं करता है, बहुत रेयर केसेस में हब यूज होता है, अदरवाइज एवरीवेयर स्विच इज यूज्ड। स्कूल का लैब के पीछे एकदम बैक वॉल में शायद यू हैव नोटिस्ड कि ऐसा डिवाइसेस रखा हुआ है, वो सारे स्विच है, हब नहीं है एक भी ना। बोल सकते हो फिर इंटेलिजेंट कौन सा रेस्पेक्ट में है। हब का काम होता है, हब का काम होता है जस्ट एज ए कनेक्शन टूल, मतलब वहां पे कनेक्शन मतलब जोड़ेगा, जोड़ के तुमको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा बस। बट यू कैन नॉट हैव कंट्रोल ओवर योर नेटवर्क। माने ये जो हब है, ये हब में तुम कनेक्ट कर दिया, तो नाउ यहाँ पे 8 कंप्यूटर तुमने कनेक्ट किया, देन 8 कंप्यूटर विल गेट इक्विवेलेंट राइट। सारे कंप्यूटर्स को सेम राइट मिलेगा। अब स्विच का काम बेसिकली देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज अ नेटवर्क डिवाइस यूज्ड टू सेगमेंट नेटवर्क्स इनटू सब नेटवर्क्स। मतलब तुम्हारे पास एक नेटवर्क तुमने लिया, सपोज एक ऑफिस है, ऑफिस में एक है, मैं कुछ कस्टमर के लिए नेटवर्क दूंगा, एक है जो एम्प्लॉइज है उनके लिए एक कनेक्शन दूंगा, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके लिए एक दूसरा कनेक्शन दूंगा। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है उनके पास सारे प्रिविलेज होंगे, राइट्स होंगे सारे, एडमिन राइट। जो कस्टमर्स है उनके लिए लिमिटेड राइट्स होंगे, और जो एम्प्लॉइज है उनको होगा क्या, मॉडरेट लेवल, मतलब कस्टमर से थोड़ा ज्यादा बट एडमिनिस्ट्रेटर से थोड़ा कम। तो मेरा नेटवर्क को 3 सब नेटवर्क्स में मैं डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड करना चाहता हूं। तो इन दिस केस यू नीड टू कॉन्फ़िगर दिस, ये जो मैंने जोड़ा कनेक्शन को, ये कनेक्शन को मुझे एडमिनिस्ट्रेशन करना है मुझे। सो ये जो स्विच है, ये स्विच इज प्रोग्रामेबल, माने इसको मैं प्रोग्राम कर सकता हूं। प्रोग्राम मतलब तुम्हें कोड नहीं लिखना है, स्विच के साथ एक मतलब स्विच को मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। नेटवर्क ऑप्शन में जाके देयर आर सम ऑप्शंस, यू हैव सिलेक्ट टू, यू हैव सम ऑप्शंस टू सिलेक्ट, कुछ डिसिलेक्ट करना है, ऐसा मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर लोग हैं दे नो, राइट। लेकिन जो हब है उसको कोई कॉन्फ़िगरेशन का कोई बात ही नहीं है, यू कैन नॉट कॉन्फ़िगर। तो आज के जमाने में जो नीड है नेटवर्क का, वहां पे तो सब नेटवर्क बनाने का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा आ जाता है। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे हब के बदले में स्विच यूज होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच, ये क्वेश्चन लेकिन आता है बहुत।
1 मार्क का क्वेश्चन छोटा। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड रिपीटर। अच्छा, मोडेम जैसा उसका रिक्वायरमेंट तुमको पता चल गया है, हब का रिक्वायरमेंट पता चल गया है, स्विच का रिक्वायरमेंट पता चल गया। नाउ अकॉर्डिंग टू योर नीड, तुमको मतलब समझ में आ गया है मुझे अभी मोडेम चाहिए, हब चाहिए ना, स्विच चाहिए, क्या चाहिए। सिमिलरली रिपीटर, अब रिपीटर का रिक्वायरमेंट थोड़ा और लिमिटेड हो जाता है। रिपीटर हमेशा जरूरत नहीं पड़ता है। रिपीटर का काम क्या होता है? It is a networking device that amplifies and restores signals for long distance transmission. मेरे ख्याल से मैंने जो एक केस स्टडीज बोला था, वहां पे मैंने क्या बोला था कि 200 मीटर लॉन्ग एक जगह में मैं ट्रांसमिट करना चाहता हूं, तो देख रहा हूं कि कनेक्शन वहां पे पहुंचने के बाद बैंडविड्थ कम हो जा रहा है, तो स्पीड कम हो रहा है। तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? वहां पे रिपीटर चाहिए, वहां पे एक रिपीटर का जरूरत है। बेसिकली क्या होता है, लाइक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। सपोज बैंडविड्थ क्या है? इट्स लाइक अ वेव काइंड ऑफ थिंग। ऐसा, ये जो इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना, थोड़ा भूल गया हम। एनीवे आई थिंक इट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ना, क्या बोलता है? यस सर, हाँ, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड। দেখ তো কবে পড়ছি এখনো মনে আছে। ठीक है जी, ओके। नाउ व्हाट हैपेंस, जितना आगे जाते हैं, ये जितना प्रोसीड करते हैं, देखो ये कम होते जा रहा है, ये कम होते जा रहा है ना। इसका मतलब है तुम्हारा जो बैंडविड्थ है ये आहिस्ता आहिस्ता थिनर हो जा रहा है। बैंडविड्थ जो है ये थिनर होते जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो स्पीड मिलेगा, यहाँ पे स्पीड उतना नहीं मिलेगा। तो क्या होता है, बीच में यहाँ पे एक डिवाइस रखा जाता है, राइट। यहाँ पे एक तो डिवाइस रखा जाता है जिसके अंदर से इसको पास किया जाएगा। जैसे ही इससे निकलेगा, निकलने के बाद इट विल गेट रेस्टोर्ड। गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे जो इतना छोटा हो गया था, इतना छोटा हो गया था, राइट। तो यहाँ पे देखो फिर से रेस्टोर हो गया। क्या बोला मैं? दैट एम्पलीफाइज। एम्पलीफाई करने का मतलब क्या है? वो एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है, दैट इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। और रेस्टोर मतलब उसको रिगेन कराता है, राइट। सो इसीलिए ये अगर मेरा सोर्स है एंड ये मेरा डेस्टिनेशन है, तो पहले क्या होता था, ये यहाँ पे आते आते बहुत कम हो जाएगा, स्पीड यहाँ पे बहुत कम मिलेगा। लेकिन मैं अगर यहाँ पे एक रिपीटर बैठा देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक रिपीटर बैठा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मेरा ये जो बैंडविड्थ है इट विल बी रेस्टोर्ड। दैट इज द जॉब ऑफ द रिपीटर। স্যার একটা ডাউট ছিল Obviously it is used for long distance transmission. স্যার স্যার বললাম উইথটা যত বেশি হবে তত বেশি খারাপ ব্যাপার? না না, উইথ যত বাড়বে তার মানে কি, বেসিক্যালি ব্যান্ডউইথের কনসেপ্টটা कहां से आया? The concept of bandwidth came from this. See, it will be this is basically like bandwidth. Now यहाँ पे क्या है, बीच बीच में देखो मतलब ये हो डिसकंटिन्यूअस हो गया। नाउ इससे कनेक्शन का स्पीड इसका ज्यादा होगा। मतलब ये जो बैंडविड्थ है, बैंड मतलब क्या है? हेयर बैंड। एक बैंड मतलब क्या? इट इज लाइक अ स्ट्रिप, इट इज लाइक अ स्ट्रिप। वो बैंड का विड्थ, वो बैंड का विड्थ इट्स लाइक दिस, ये दिस इज द विड्थ।
ये विड्थ जितना लंबा मतलब जितना ज्यादा होगा मतलब तुम्हारा कनेक्ट स्पीड ज्यादा होगा. दिस इज कॉल्ड बैंडविड्थ. बैंड विड्थ, बैंड माने ये जो मतलब डिसकंटिन्यूअस बैंड, मतलब बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं रहेगा. मतलब यहां पे जैसे कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहां पे डेंस क्लाउड रहता है वहां पे क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा. लेकिन वो अगर स्कैटर्ड हो जाता है मतलब वो क्लाउड डेंसिटी अगर कम हो जाता है तो क्या होगा नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा. इट इज एग्जैक्टली लाइक दिस. বুঝছি স্যার। जहां पे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है मतलब वो क्या होगा वो होगा डेंस्ड डिसकंटिन्यूअस, और वो बैंड का विड्थ जितना मोटा होगा, मतलब ये इतना मोटा मैं दिखा रहा हूँ बेसिकली इतना मोटा नहीं है, बहुत मतलब अकॉर्डिंग टू दिस बहुत छोटा होता है वो, लेकिन वहां पे जितना विड्थ जितना ज्यादा है बैंडविड्थ ज्यादा है मतलब तुम्हारा कनेक्शन ज्यादा. इट्स लाइक दिस. अच्छा सर, ये जो बीच में गैप्स है उसे पैकेट लॉस बोलते हैं ना? हाँ वो तो गैप हो गया मतलब क्या वहां पे डेटा छूट जाएगा. डेटा छूटेगा नहीं मतलब स्पीड कम हो जाएगा. ठीक है. हाँ सर, एक और क्वेश्चन था कि आपने बोला रिपीटर हर बार यूज नहीं होता, मतलब जरूरत नहीं हाँ पड़ता. तुम्हें तो आप ही ऐसा? हमेशा यूज नहीं करोगे ना. जहां पे तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है और तुमको लग रहा है कि डेटा ट्रांसमिशन हैम्पर हो रहा है या स्पीड कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन. एक लंबा केबल है बीच में, मतलब सपोज स्कूल का ही ले लो, एकदम रिसेप्शन से लेके तुम एकदम हॉस्टल में कनेक्शन किए हो जहां पे बीच में केबल है, और यहाँ पे तुमको देख रहे हो कि रिसेप्शन में जो स्पीड तुमको मिल रहा है हॉस्टल में स्पीड उसका आधा से भी कम मिल रहा है. इसका मतलब है कि ये कनेक्शन ड्रॉप कर रहा है या बैंडविड्थ ड्रॉप कर रहा है ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन. यहां पे रिपीटर तुमको हेल्प करेगा. तो अगर तुम्हारा ऐसा कोई जरूरत नहीं है, एक रूम के अंदर में तुमने कनेक्शन किया या लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी नहीं है तो रिपीटर का जरूरत ही नहीं है तुमको. अंडरस्टूड? हाँ ओके सर. यस सर. अब दिस इज रिपीटर. ये रिपीटर ये देखो इनपुट ये आउटपुट, मतलब एक केबल यहां पे घुसेगा और यहां से दूसरा केबल निकल जाएगा. तो ये जो मतलब जहां से घुसेगा यहां पे कनेक्टिविटी मतलब बैंडविड्थ कम मिलेगा, और जैसे यहां से निकलेगा वो एम्पलीफाइड होकर निकलेगा. वहां से एम्पलीफाइड होकर निकलेगा. जैसे होता है ना हम लोग जब माइक्रोफोन में बात करते हैं हेलो किया ना, तो मैंने जो हेलो किया देखोगे वो केबल पहले एम्पलीफायर में घुसता है और दूसरा एक केबल एम्पलीफायर से वो बड़ा सा मतलब वो स्पीकर बोलो या वो जो बॉक्स में घुसता है जाके, एंड वी कैन सी वेरी मच एम्पलीफाइड साउंड. एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट. ठीक है. अब आ जाते हैं ब्रिज. ब्रिज का नाम से ही पता चल जाता है कि लाइक देयर इज अ रिवर, एक साइड में एक पर्सन दूसरा साइड में दूसरा पर्सन, सो कम्युनिकेशन ब्रोकन. अब दोनों के बीच में मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना या जोड़ना है दोनों को, देन वी पुट अप one bridge. So it is a networking device that lets you link two networks together. Suppose हम लोग का अब दो रूम में दो लैब है, अब दो लैब में सेपरेटली दोनों लैन है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पे एक लैब है यहां पे दूसरा लैब है, तो दो लैब में अलग अलग दो लैन एस्टेब्लिश किया हुआ है. नाउ ये दो लैन को तुम जोड़ोगे, यू विल रिक्वायर अ ब्रिज. ऐसा यहां पे एक तो नेटवर्क है सपोज लैब नंबर 1 ये लैब नंबर 2, मैं ये दोनों सर्वर टू सर्वर कनेक्ट कर देंगे, लेकिन यहां पे स्विच से काम नहीं होगा, हब से काम नहीं होगा, यहां पे चाहिए ब्रिज. लेकिन ये भी तुमको मतलब नॉर्मल सेंस में जरूरत नहीं पड़ेगा. जैसे कि हम लोग स्कूल में ब्रिज का कॉन्सेप्ट नहीं लगा है क्योंकि दो लैब इस हिसाब से कनेक्टेड नहीं है, अलग अलग है दोनों लैब. तो अगर तुम